chapter very frequently. Most of the time we are concerned about mechanical loads, but many of the times, in addition to mechanical loads, we also come across temperature, and temperature acts as a load. We can have a thermal field, and this field can produce stress and strain as can be done by mechanical field. So that's why temperature becomes a very important factor in many of our designs, and we are going to see how this acts as a force. Change in temperature acts as a force and can cause stresses, which we would be calling thermal stresses. So thermal stresses are basically stresses caused due to temperature changes in a system. Changes जो हैं वो higher side पे भी हो सकती हैं, and they can be on lower side also. So it can be both type of changes. What would be the effect of the change? Basically, it would cause a change in the dimension of the body itself, right? So temperature change can cause a change in the dimension, and of course, that means it can cause deformation, resulting in a strain that can be due to expansion or contraction. And generally, when of course we are treating material as a linear elastic material, we are considering that it is linearly related to the change in temperature, either increase or decrease, both. So generally we are saying that expansion and contraction would be having a linear relationship with change in temperature. जब ये बात है तो then we can write a simple equation which can tell us deformation due to thermal expansion or contraction. Previously we've been writing an equation for mechanical deformation, और equation क्या थी जो कल भी हम सॉल्व कर रहे थे? डेल्टा ए एल ओवर ई ए. ठीक है जी, यही थी या चेंज थी इसमें कोई? सर ऊपर पी नहीं आता था. राइट. सो let me quickly change some settings because I am chilly. So in case of thermal expansion and contraction, we can have a change in dimension or deformation which can be due to temperature, और उसका जो equation है, जो formula है, it's given here. So we'll be generally representing it with subscript T, capital T for temperature, and this actually is equal to alpha delta TL. Now some things are obvious. L क्या है? L is the length of the member, जो कि initial length है. Delta T is change in temperature, जो initial temperature है और final temperature है. So we can also say that this is T final minus T naught, and alpha is a material property which is known as coefficient of thermal expansion. Generally this is linear, so we also sometimes write it as linear coefficient of thermal expansion, and this is a material property. Like elastic modulus, this is a material property, and we can see कि different materials कितना expand करते हैं. तो रफली कोई आइडिया है कौन सा मटेरियल ज्यादा एक्सपैंड करेगा? इफ वी आर यूजिंग स्टील एंड एल्यूमिनियम, दोनों को सेम टेम्परेचर से हीट करें तो क्या ज्यादा एक्सपैंड करेगा, क्या कम एक्सपैंड करेगा? If we have a bar or let's say two similar bars, एक जो है ये हम कह रहे हैं स्टील की बनी हुई है और एक जो है एल्युमिनियम की बनी हुई है, तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा that would expand more, ठीक है, and aluminium expands more than steel. तो different अल्फा की वैल्यूज आप देख सकते हैं, टेबल्स में अवेलेबल होती हैं, बाकी जगहों पे अवेलेबल होती हैं, so you can figure that out.
कहाँ पे यूज हो रहा है, बहुत सी जगहों पे इसका हम इस्तेमाल, मोस्ट कॉमनली यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग इन लार्ज civil structures. For example, in big buildings, I don't know SMME की बिल्डिंग में कहीं आपको ऐसे जॉइंट नजर आते हैं कि नहीं, but you can very easily observe them in bridges. That bridges have these kind of gaps between concrete slabs, which are there to let them expand and contract during summers and winters. Right? तो ये तो commonly आप observe कर सकते हैं. Similarly, you can observe this. कहाँ देख सकते हैं? रेल ट्रैक्स में देख सकते हैं. So रेल ट्रैक्स अगर आप तो कभी देखने का मौका मिले, laid something like this, and then they will have a gap between them after some distance, so they can expand and contract with weather, or even during the day and when sun goes down at night. ठीक है, सो ये कॉमनली आप देख सकते हैं कि दिस इज टेम्परेचर चेंज, स्पेशली वेदर के साथ लिंक करके या डे और नाइट के टेम्परेचर के साथ लिंक करके इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, और इसको हम डिजाइन में ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब वी कैन हैव स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेट मेंबर्स. ये पहले पढ़ा हुआ, ये क्या होते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेट मेंबर्स? नो सर. नहीं पढ़ा हुआ कहीं? सर जिनको हम स्टैटिक्स के रूल से सॉल्व ना कर सकें. बिल्कुल ठीक है, वो कौन से होंगे? इनडिटर्मिनेट. स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट मेंबर्स, जनरली ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं जहाँ पे हम सिंपल इक्वेशंस का बैलेंस लेके, फोर्स बैलेंस लेके या मोमेंट का बैलेंस लेके उनको सॉल्व नहीं कर पाते. उसकी रीजन जनरली ये होती है कि ऐसे मेंबर्स में मल्टीपल लोड पाथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. जब मैं टर्म यूज कर रहा हूँ लोड पाथ, तो लोड पाथ का क्या मतलब होता है? लोड पाथ का मतलब होता है कि व्हेन एवर वी आर कंसिडरिंग समथिंग, कि लेट सपोज ये एक रॉड है और हम ये कहते हैं कि जी ये इसकी टॉप पे जो है वो एक एक्सटर्नल लोड एफ अप्लाइड है, और बॉटम पे जो है ये किसी प्लेटफॉर्म से लिंक्ड है. So now what this rod is doing is that it is actually transferring this load to this platform through itself. और अगर इसको हम लोड की फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं कि जी लोड जो है या स्ट्रेसेस जो हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, पासिंग थ्रू दिस, और ट्रांसफर हो रहे हैं जो नीचे प्लेटफॉर्म है जिसने इसे सपोर्ट किया हुआ. सो देयर इज अ सिंगल लोड पाथ. अगर स्ट्रक्चर में मल्टीपल लोड पाथ आ जाएं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, सो इस केस में हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इनडिटर्मिनेट हो जाते हैं, या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों साइड पे हम फिक्स बाउंड्री कंडीशन लगा दें. अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हम कह रहे हैं कि इधर से भी फिक्स्ड है और इधर से भी फिक्स्ड है, सो इट कांट, वी हैव स्टॉप्ड इट्स मोशन, सो इन दैट केस इट बिकम्स इनडिटर्मिनेट. सो इस तरह के सिस्टम जो है इनडिटर्मिनेट हो जाते हैं. वी कांट सॉल्व देम सिंपली बाय यूजिंग फोर्स बैलेंस, सो देन वी नीड अदर मेथड्स और उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो जो डिटर्मिनेंट मेंबर्स हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट मेंबर्स जो हैं, उनमें क्या है कि जो चेंज इन लेंथ है वो वी कैन डिटरमिन एज अ मेंबर इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट. जो चेंज इन लेंथ है, अब हम थर्मल स्ट्रेस की बात करें, डेल्टा टी की बात करें, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट. बट जो इनडिटर्मिनेट मेंबर्स हैं, वहाँ पे जो थर्मल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, दे वुड बी कंस्ट्रेन्ड बाय सपोर्ट्स. ये एग्जांपल जैसे भी मैंने आपको दी कि अब ये अगर आपने दोनों तरफ से एक रॉड को एम्बेड किया हुआ है, नाउ यू स्टार्ट रेजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो इट कांट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और expand, so it becomes a problem in terms of solution. So it would of course produce thermal stresses, and we must include this thing in our design because these stresses would actually be living within that structure. एक खास हद तक तो इस बार को आप रेज करें और इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, तो इट वुड प्रोड्यूस स्ट्रेसेस
ये डिफॉर्म नहीं होगा बिकॉज इट इज कंस्ट्रेंट बाय इट्स साइड्स। लेकिन जैसे ही ये एक खास उसको इंक्रीज कर जाएगा तो वी ऑल नो व्हाट वुड हैपन, इट वुड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वन साइड, तो उसकी डिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाएगी विच इज अ डिफरेंट फिनोमेना, क्योंकि हम बेसिकली क्या एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे हैं। तो जब डिफ्लेक्शन आएगी तो दैट इज अ ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन which is caused by a different type of phenomena but is a net result of the two end boundary conditions। ये भी आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं तो उसमें जो है वो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, हम कैसे इसको बात करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। राइट जी, कोई आप लोगों के जहन में कोई थर्मल स्ट्रेस की एग्जांपल्स आती हो, किसी इंस्ट्रूमेंट में थर्मल स्ट्रेस यूज हो रही हो, किसी मेजरिंग आइटम में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज होती हो, कोई है जहन में चीज? कोई फिनोमेना कभी किसी ने ऑब्जर्व किया हो? एक दो की तो मैंने बात कर दी, ब्रिजेस की, रेल ट्रैक्स की। सर वो जो बायोमेटालिक वो होती है, स्ट्रिप होती है उसमें। क्या चीज होती है दोबारा बताएं? बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होती है आपकी टेम्परेचर से जो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं, वेरी राइट, बिल्कुल। वहाँ पे हम दो डिफरेंट मटेरियल्स जो कि जिनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होता है उनको यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इट टर्न्स यूज और कर्वेचर की फॉर्म में टर्न कर रही होती है एंड वी कैन मेजर टेम्परेचर्स और इस तरह की चीज़ें मेजर कर सकते हैं उससे। बहुत अच्छी एग्जांपल है। और कोई इसके अलावा किसी ने कोई फिनोमिना कभी ऑब्जर्व किया हो जहाँ पे थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही हो या कोई और चीज़? मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में या वर्कशॉप प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी ना, मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात करता हूँ, वर्कशॉप प्रैक्टिस तो कर ली है ना आप लोगों ने? यस सर। तो उसमें लेथ वगैरह देखी है, मैनुअल लेथ, मिलिंग, ये चीजें देखी है ना? यस सर। हाँ, तो नाउ यू नो कटिंग प्रोसेसेस, फिर मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता। सो यू नो कटिंग प्रोसेसेस, तो कटिंग प्रोसेसेस जो भी हो रहे हैं इन कटिंग प्रोसेसेस में मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो डेसिपेट हो रही होती है। और वो हीट क्या कर रही होती है, वो मटेरियल का जो है बिहेवियर चेंज कर रही होती है, सॉर्ट कर रही होती है मटेरियल को जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने फोर्जिंग की है, बाकी प्रोसेसेस की हैं, तो तमाम प्रोसेसेस में देखें थर्मल स्ट्रेसेस या थर्मल इफेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और उन थर्मल इफेक्ट्स की वजह से उनमें स्ट्रेसेस आती हैं। हीट ट्रीटमेंट उसमें की है, हीट ट्रीटमेंट्स के बारे में बातचीत हुई है वर्कशॉप प्रैक्टिस, जो एडवांस वर्कशॉप प्रैक्टिस है कुछ है उसमें कोई शायद बात हुई हो हीट ट्रीटमेंट्स के बारे में? अनीलिंग के बारे में कोई बात पड़ी है? जी सर, की भी है बात। स्पेशली वो जो आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है उसके अंदर आपको जो वो बनाना होता है, आपका जो कास्ट होता है वो इस तरह बनाना होता है, उसको लाइक बेक वगैरह करके सब चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि फिर वो बाद में क्रैक ना हो और ख़राब ना हो जब उसको मेटल उसमें एग्जैक्टली, पोर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू जॉग योर मेमोरी के अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स भी जब आप चीज़ों को लिंक करना स्टार्ट करेंगे ना तो इट वुड गिव यू अ मच बेटर आइडिया कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इन रियलिटी तो किसी भी एक प्रोसेस में ये सारी चीज़ें कंबाइन होके चल रही हैं। तो जस्ट ट्राई टू मेक दीज कनेक्शंस इन योर माइंड कि अच्छा क्या वहाँ पे किया था, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसे वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, प्रैक्टिकली आपने चीज़ करके देखी है। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग इट इन थ्योरी। अनीलिंग का प्रोसेस आपने देखा हो, पढ़ा हो शायद। अनीलिंग क्यों करते हैं? स्ट्रेस रिलीविंग के लिए करते हैं। जो भी स्ट्रेसेस आती हैं दे कैन बी ड्यू टू एनी प्रोसेस, तो थर्मल स्ट्रेसेस भी हो सकती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी हो सकती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली इंटरलिंक्ड।
ठीक है जी, सो लेट्स सर ड्यू अनिलिंग जी। एक दफा काइंडली मेंबर करवा देना, वो याद नहीं आ रही, मतलब उसमें होता क्या है? अनीलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें आप जो है बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है ना वो एक खास टेम्परेचर तक हीट करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया होता है उसकी मटेरियल को, और फिर उसको जो है वो कूल डाउन करते हैं। तो उससे ये होता है कि जो उसमें स्ट्रेसेस एंड ट्रैप हो चुकी होती हैं ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, वो स्ट्रेसेस रिलीव हो जाती हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से गेन कर लेता है। अगर जैसे हमने पहले बात की थी कि बेसिकली अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे हम देखें तो जब हम हमारे पास ये है ना कि आपके पास यील्ड यहाँ पे जाके हो रही है, अगर आप किसी बॉडी में, अब आपके पास ये मार्जिन है टोटल स्ट्रेस का जिसके बाद यील्ड हो रही, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई भी परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल रोलिंग कर रहे हैं जिससे हम रिड्यूस कर रहे हैं बॉडी को, या कोई भी और प्रोसेस कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिसमें कुछ स्ट्रेसेस जो है वो अब कंपोनेंट में रह जाएंगी, तो यू कैन थिंक ऑफ इट कि आपने उसमें से लेट सपोज इतना पोर्शन यूज कर लिया, तो नाउ प्रैक्टिकली जब आप उस कंपोनेंट को यूज करेंगे तो यू ओनली हैव दिस सॉर्ट ऑफ मार्जिन लेफ्ट विद यू, जिसके बाद वो यील्ड करना या डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जबकि हम क्या एज्यूम कर रहे होंगे एज अ डिजाइनर कि वी आर हैविंग दिस मार्जिन विच इज नॉट एक्चुअली देयर। सो अनीलिंग का प्रोसेस हम इसलिए करते हैं कि वी रिमूव दीज रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो कि उसमें रह जाती हैं, और उसके बाद हमें जो कंपोनेंट है उसकी जो रेंज है स्ट्रेस की, यील्ड स्ट्रेस की, वो वापस वहीं पे हो जाती है जहाँ पे इनिशियली मटेरियल जब हमारे पास आया था और हमारे पास जो रेंज, तो इसलिए हम जनरली अनीलिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, सो लेट्स लुक एट 3-4 एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स बुक में भी सोल्यूशन मौजूद है, स्लाइड्स पे भी सोल्यूशन मौजूद है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू या इसको सॉल्व इन व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड लेट मी शेयर विद यू। जी, सो stop sharing this and start sharing whiteboard। अच्छा, ठीक है जी, सो व्हाइट बोर्ड विजिबल है अब? आई होप कि व्हाइट बोर्ड आप लोगों को विजिबल है, उसमें कोई यस इशू? सर। ठीक, ठीक है, गुड। Actually, let me bring our question here. This is the statement of our question. And this is the figure, given figure. So this is basically example है आपकी बुक की, एग्जाम्पल है इसी टॉपिक की, 4.6 टॉपिक है ये, इसी की एग्जाम्पल है। So there are 3 examples given, we'll look at them one by one. So example क्या कह रही है जी कि A36 स्टील की बार है जो कि शो की गई है। दिस इज द सेम सिचुएशन आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हिच इज कंस्ट्रेंड टू फिट बिटवीन टू फिक्स्ड सपोर्ट्स। सो बोथ एंड्स जो हैं दे आर फिक्स्ड, so we can represent them like this। और टेम्परेचर जब इसे फिक्स किया गया था तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था। दिस क्वेश्चन इज इन यूएस यूनिट्स, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था। if the temperature is to be raised to, now due to some reason टेम्परेचर जो है वो रेज होके 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाता है। डिटरमिन द एवरेज नॉर्मल थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस, एवरेज नॉर्मल थर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस उसी तरह सिग्मा से, और थर्मल है तो वी कैन यूज टी फॉर दैट, विच वुड बी डेवलप्ड इन द बार, बार की
क्रॉस सेक्शन जो है बार का हमें गिवन है कि इट इज 0.5 इंचेस बाय 0.5 इंचेस एंड इट्स हाइट इज 2 फीट। तो दिस हैज टू बी सॉल्व। अच्छा जी, इस केस में हम सबसे पहले तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ यहाँ पे इसको जो ज़हन में रखना ज़रूरी है वो क्या है, वो ये है कि अब यहाँ पे उस तरह मैकेनिकल फोर्स तो कोई शो नहीं हो रही, जैसे कि हमें मैकेनिकल फोर्स अगर हो तो उसके प्रॉब्लम्स में शो हो रही होती है। तो अब यहाँ पे हम फोर्स कैसे शो करेंगे? सो वी एज्यूम कि टेम्परेचर की वजह से इसकी जो लेंथ है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज आएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट वुड ट्राई टू एक्सपैंड, so it would try to expand and it might become something like this। ठीक है, और ये जो अब एक्सपेंशन है इसमें दो चीजें हो रही होंगी। एक जो है क्या हो रहा होगा, जो एक्सपेंशन खुद हो रही होगी वो हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस की वजह से हो रही है, लेकिन फिजिकली जो बॉडी है वो तो कंस्ट्रेंट है, तो ये यहाँ से ऊपर तो नहीं जा सकता। तो बाय द सेम अमाउंट समथिंग इज पुशिंग इट, so it remains of the same length and doesn't deform by this amount। so उसी अमाउंट को कवर करने के लिए उसके ऑपोजिट जो ये हमारी कंस्ट्रेंट है या वॉल है या जो भी चीज़ है, इसको हम कहते हैं कि ये अब एक मैकेनिकल फोर्स से उसको रोक रही है, जिसको हम मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल फोर्स कह लें, तो डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करें। तो ये स्ट्रेस वो है जो कि प्रोड्यूस हो रही है मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से कंस्ट्रेंट के, और डेल्टा टी वो स्ट्रेस है जो कि प्रोड्यूस हो रही है कि एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है उसकी वजह से। सो नाउ वी कैन ऑन आवर फ्री बॉडी डायग्राम वी कैन ड्रॉ एक्चुअली टू फोर्सेस, एक जो है जो इसको एक्सपैंड कर रही है और एक जो इसकी एक्सपेंशन को रेजिस्ट कर रही है। ठीक है और क्योंकि ये दो एंड इसके लेबल हुए हैं ए एंड बी, सो लेट्स कॉल देम FA and FB, and both of these should be equal, so opposite हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन भी कि FA is equal to FB, और फोर्स बैलेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो we can write FA is equal to FB, और दोनों को we can say कि they are equal to F, right। तो फर्स्ट थिंग तो ये है, जो क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है तो वी हैव टू लुक एट कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब हमने दूसरी चीज क्या, हमने बेसिकली मैग्नीट्यूड डिटरमिन करना है सिग्मा टी का। तो दूसरी चीज जनरली हम यहाँ पे कंसिडर करते होते हैं या कंडीशन कंसिडर करते होते हैं, एक तो हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन कंसिडर कर ली ना, इसको लेट मी राइट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन कंसिडर कर ली। द सेकंड थिंग दैट वी कंसिडर इज कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी को आप डिसाइफर कर सकते हैं कि जो फिजिकल सिस्टम है उसकी जो हमें कंस्ट्रेंट्स नजर आ रही हैं, जैसे भी मैंने डिस्कस किया, दे मस्ट बी फॉलोड, और सिस्टम जो है वो उन कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए जो एग्जिस्ट करेगा उसको हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है एंड ए की विद रिस्पेक्ट टू एंड बी, बोथ एंड्स आर कंस्ट्रेंट, सो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, वो जीरो होगी। ठीक हो गया। सो जो हमने ये वाली डायग्राम बनाई है जो कि राइट हैंड साइड पे है, जिस पे डेल्टा टी और डेल्टा एफ लिखा है, इसको यूज करते हुए कंपैटिबिलिटी कंडीशन या कंपैटिबिलिटी की इक्वेशन हम ए पॉइंट ए पे लिख सकते हैं। तो एट पॉइंट ए क्या कंडीशन होगी कि जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी दैट इज जीरो, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे स्ट्रेस थर्मल माइनस स्ट्रेस मैकेनिकल या फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। एंड दिस वी रोट बाय ऑब्जर्वेशन या कंपैटिबिलिटी से का नाम इसे हम दे रहे हैं। अब इन दोनों में हम
वैल्यूज पुट अगर कर दें तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा टी, क्या फार्मूला हमने अभी लिखा है, अल्फा डेल्टा टी एल माइनस डेल्टा एफ का फार्मूला हम लिखते आ रहे हैं, हमें पता है एफ एल ओवर ए ई। अब यहाँ पे हमें चीजें जो हैं वो पता है, गिवन है इंफॉर्मेशन एंड वी कैन मेक यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्ट्रेस निकालनी है तो फोर्स हमें पता होनी चाहिए। सो एफ को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंड वी राइट डेल्टा अल्फा डेल्टा टी ए ई, एल जो है दैट वुड बी कैंसल्ड, लेट्स पुट इन नंबर्स। जो अल्फा है वो वैल्यू स्टेटमेंट में तो नहीं गिवन, बट वी कैन टेक इट फ्रॉम एंड ऑफ द बुक। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6.6 इंटू 10 टू पावर -6, और ये हमेशा पर डिग्री में होगा, तो यहाँ पे पर डिग्री एफ है, इंटू 120 T2 था -60 इनिशियल था, डेल्टा टी आ गया। ए जो है वो हमें गिवन है 0.5 इंटू 0.5, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस फिगर में हमें शो किया हुआ है। आगे क्या है जी, आगे हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू है। मॉडुलस की वैल्यू अगेन वी कैन टेक फ्रॉम द डेटा गिवन इन द बुक विच इज 29 इंटू 10⁻³ और इसके यूनिट हैं बेसिकली, मैं लिख देता हूँ के पर इंच स्क्वायर। सो आवर फोर्स वुड बी 2.871, ये ठीक हो गया। और now it becomes very easy to calculate stress. तो स्ट्रेस लिख लें या थर्मल स्ट्रेस लिख लें, जो भी लिखना चाहते हैं, इज इक्वल टू फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स हमें पता चल गई 2.871, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 का स्क्वायर, एंड वी गेट 11.5 KSI, which means kilo PSI. So this is our stress which would be produced into this bar, which is statically indeterminate bar. So इस तरह के तमाम क्वेश्चंस में in addition to equilibrium we would be making use of excuse me compatibility. ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें क्लियर है ये आप लोगों को? यस सर। अच्छी बात है। थोड़ा सा इससे अब जरा अगली एग्जांपल देखते हैं जिसमें इससे रिलेटिवली एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है वो डिस्कस हुई है। क्या डिस्कस हुआ हुआ जी? Does anyone know any shortcut कि ये जैसे मैं इसे expand कर रहा हूँ तो it rotates, it doesn't rotate, it remains in its original configuration? कोई ऐसा शॉर्टकट है व्हाइट बोर्ड में? शिफ्ट दबा के करें। क्या दबाऊं? शिफ्ट दबा के। ये नहीं, शिफ्ट के साथ शिफ्ट कंट्रोल ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। इससे आगे की कोई बात चाहिए है तो वो बताएं। और नहीं पता। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट तो कर ही लेते हैं ना। अच्छा चलें जी, ये दिस इज द स्टेटमेंट एंड लेट्स ब्रिंग इन द फिगर। ये आ गई हमारी फिगर। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? दिस इज अ मोर इन्वॉल्व स्ट्रक्चर। सो वी आर गिवन अ रिजिड बीम व्हिच इज फिक्स्ड टू द टॉप ऑफ द 3 पोस्ट। सो रिजिड बीम कौन सी हुई जो कि फिक्स एट द टॉप ऑफ 3 पोस्ट है? ये वाली बीम तो होगी रिजिड, ठीक है। मेड ऑफ A36 स्टील एंड 2014 T6 एल्यूमिनियम, राइट। सो 2014 ठीक है। T6 किसी को पता है क्यों लिखा हुआ है? So this is A36,
2014 T6 क्यों जी? एल्युमिनियम की डेजिग्नेशन में T6 क्यों लिखा हुआ है? ये डिफरेंट इसकी हीट ट्रीटमेंट होती है। T6 है, T3 है, ठीक है। अगर कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं है और जिस फॉर्म में मौजूद है उसी में, तो O होता है लिखा हुआ, राइट। तो ये डिफरेंट डेजिग्नेशंस आती हैं, इनकी मदद से हम डिफरेंट मटेरियल को देख सकते हैं। सो बताने का मकसद ये है कि एक ही अलॉय है 2014, बट विद डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट्स भी उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हमें मिल सकती हैं, तो वेरिएशन हमें काफ़ी मिल जाती है। एनीवेज, सो ये हमारे पास मिडिल पोस्ट जो एल्युमिनियम की है, दो साइड वाले पोस्ट जो हैं दे आर मेड आउट ऑफ स्टील एंड द पोस्ट ईच हैव अ लेंथ ऑफ 250 मिलीमीटर्स, वो हमें बता दिया गया है। When no load is applied to the beam and the temperature is 20 डिग्री C, तो इनिशियल जो टेम्परेचर है जिस पे ये सारा स्ट्रक्चर आप समझें कि मैन्युफैक्चर किया गया या बनाया गया, वो 20 डिग्री C था। सो उसमें जो है वो कोई लोड नहीं है। Determine the force supported by each post if the bar is subjected to a uniform distributed load of 150 kilonewton per meter। तो बाद में जो स्ट्रक्चर है उस पर 150 किलोन्यूटन पर मीटर का एक लोड डाल दिया गया है, और जो टेम्परेचर है वो भी 20 डिग्री से बढ़ के 80 डिग्री C पे चला गया। तो नाउ विल बी हैविंग स्ट्रेसेस ड्यू टू मैकेनिकल लोड प्लस टेम्परेचर फीड। तो दो अब यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं चीज़ें, जिनकी वजह से दो टाइप की फोर्सेस आ गई हैं, जिनकी वजह से विल बी हैविंग दिस फिनोमेना। सो इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें, वेयर डू वी एंड अप? So we will have जो our rigid bar, ये हमारा rigid bar आ जाएगा and everything is moving around it। इस पे जो externally force लग रही है 150 किलो न्यूटन पर मीटर, तो उसको मैं पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा? एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इट वुड बी अप्लाइड एग्जैक्टली इन सेंटर और मिडल। ये तो सबसे आसान बात थी। मैग्नीट्यूड उसका क्या आ जाएगा? क्यों जी? 90 किलो न्यूटन। कैसे निकाला आपने 90? ये 600 है तो इसको कर लिया उसके साथ मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो इट वुड बी 90 किलो न्यूटन। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को वी वुड ऑलवेज बी कन्वर्टिंग इट इनटू पॉइंट लोड, जब भी हम अब फ्री बॉडी डायग्राम की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और जो हमारे पास आ रहे हैं तीन सपोर्ट्स आ रही हैं, सपोर्ट्स उनको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये एक ये आ गई, इसको नाम दिया गया है फॉर स्टील है तो F स्टील, force in steel. Again, this one is similar to that. So this one is force in steel and the middle one is aluminium. So we can call it force aluminium. तो ये हमारे पास तीन आ गए। तो सबसे पहले तो जैसे पिछली दफा हमने लिखा था, इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लिख लेते हैं, राइट। सो सारी फोर्सेस y डायरेक्शन में है, सिग्मा Fy is equal to 0 would give us force in steel plus force in steel plus force in aluminium is equal to ये -90 लिख देते हैं, -90 into 10⁻³ किलो न्यूटन की वजह से is equal to 0, और we get 2 FST plus F aluminium minus is equal to 90 into 10⁻³, राइट। सो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम से तो यही इंफॉर्मेशन आ सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज कि वी मूव ऑन टू कंपैटिबिलिटी, और कंपैटिबिलिटी में देखेंगे क्या हो रहा है।
सो जी कंपैटिबिलिटी की वजह से अब जो इक्वेशंस हमें मिलती हैं वो लिख लेते हैं। कंपैटिबिलिटी, अच्छा, सो कंपैटिबिलिटी के केस में क्या हो रहा होगा? कंपैटिबिलिटी के केस में ये हो रहा है कि इफ आई कैन ड्रॉ दीज, जो लेफ्ट मोस्ट है स्टील वाला, लेट सपोज ये वो है, ठीक है, और जो मिडिल वाला है एल्युमिनियम वाला विच इज थिकर, ये एल्युमिनियम वाला है, और फिर राइट साइड पे दोबारा से उसी तरह स्टील वाला कॉलम आ जाएगा, कॉलम कह लें, सपोर्ट कह लें, वट एवर यू वांट, राइट। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है दोनों में? वही चीज जो पहले हो रही थी कि इसमें अब स्टील को आइडेंटिफाई करने के लिए डेल्टा एस टी और ब्रैकेट के बाहर कैपिटल टी लिखा है। तो दिस इज व्हाट वुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टील एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, उसकी लेंथ जो साइड फ्री है उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। और लेट सपोज कि ये अगर कोई मैकेनिकल लोड नहीं है तो ये इंक्रीज होकर यहाँ पहुंच जाता है। अब क्योंकि मैकेनिकल लोड भी हमने अप्लाई किया हुआ है, वो मैकेनिकल लोड क्या करेगा, वो इसको डाउनवर्ड पुश करेगा और इसको एक नए लेवल पे ले आएगा, और उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा स्टील आउटसाइड ब्रैकेट एफ हम लिख दें और मैकेनिकल लोड के लिए। तो जो स्टील है इसमें ये दो चीजें हो रही होंगी, थर्मल की वजह से एक्सपैंड करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो लोड है मैकेनिकल लोड है इट इज काउंटर एक्टिंग, इट वुड बी पुशिंग इट डाउनवर्ड्स। मैकेनिकल लोड जनरली वुड बी हैविंग द अपर हैंड, क्योंकि मैकेनिकल लोड हम वी कैन सी इट्स अ 90 किलो न्यूटन लोड, सो इवेंचुअली इट वुड बी हैविंग सम कंप्रेशन, बट देन वो उतनी नहीं होगी जितनी कि प्योर मैकेनिकल लोड से होती, बिकॉज सम ऑफ इट वुड बी रेजिस्टेड बाय दी जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। सेम वुड बी द केस फॉर एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम का जैसे मैंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, सो इस वजह से ये हम जस्ट रफली शो कर रहे हैं चीज़ों को। तो एल्यूमिनियम की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने वाली कि क्योंकि मैकेनिकल लोड बाय इक्वल अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तमाम इन लोड्स पे, सपोर्ट्स पे, तीनों सपोर्ट्स पे, सो वी कैन सेफली अज्यूम कि जो डिफॉर्मेशन है, टोटल डिफॉर्मेशन है इनिशियल पोजीशन से, वो स्टील की और एल्यूमिनियम की दैट वुड बी दी सेम, राइट। वो ज़्यादा नहीं हो सकती बिकॉज दोनों साइड पे जो स्टील के पोस्ट हैं और बीच में एल्यूमिनियम का पोस्ट है। yesterday we saw examples जहाँ पे जो है there was a tilt बिकॉज दोनों मेंबर्स जो हैं देयर वर टू सपोर्ट्स, और एक मेंबर जो है ज़्यादा डिफॉर्म कर रहा था और दूसरा मेंबर जो है वो कम डिफॉर्म कर रहा था। इन दिस पर्टिकुलर केस दोनों साइड पे स्टील के मेंबर्स हैं, सो दे वुड बी डिफॉर्मिंग बाय सेम अमाउंट। जब वो सेम अमाउंट से डिफॉर्म करेंगे तो जो मिडिल में एल्यूमिनियम का मेंबर है इट वुड बी डिफॉर्मिंग बाय द सेम अमाउंट, वो ज़्यादा डिफॉर्म नहीं कर सकता उनसे, ठीक है। सो ये हम सारी चीज़ें फिजिकल कंडीशन को देखते हुए एज्यूम कर रहे हैं और वहाँ से डिड्यूस कर रहे हैं और उसकी बेस पे हम कंपैटिबिलिटी लिख रहे हैं। सो ये जो हमने फाइनल पोजीशन ड्रॉ की कि जी स्टील इस फाइनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, सो एल्यूमिनियम भी जो उसमें मैकेनिकल फोर्स होगी वुड ब्रिंग इट टू दिस फाइनल पोजीशन बैक, और वो जो उसका डेल्टा होगा दैट इज डेल्टा एल्यूमिनियम ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो एक तो कंपैटिबिलिटी में हमने मेन बात जो लिखी वो ये लिखी कि जो डेल्टा है स्टील का एंड डेल्टा एल्यूमिनियम का दे वुड बी सेम। स्मॉल ए यूज कर रहे हैं तो स्मॉल ए यूज कर लेते हैं, राइट। अच्छा, और अब इसकी वजह से हमें पता चल गया कि फाइनल पोजीशन भी सेम होगी। सो सबसे पहले जो ये डेल्टा स्टील में है this would be a combination of mechanical and thermal one, so
वी आर सेइंग, जहाँ पे जो इक्वेशन अब आपकी बुक में या एग्जांपल में उसने लिखी हैं, वो उसने फॉर द सेक ऑफ ईज शो कर दिया है कि जी मैं जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ. इट डजंट रियली मैटर, आप अदरवाइज भी लिख सकते हैं जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं. just this is just for the sake of ease. So delta स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आ रहा है प्लस डेल्टा इन स्टील दैट ड्यू टू मैकेनिकल लोड, एंड सेम गोज फॉर एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में भी क्या है जी, जो डेल्टा इन एल्यूमिनियम ड्यू टू टेम्परेचर प्लस डेल्टा इन एल्यूमिनियम ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स. तो दीज आर दी कंडीशंस जो कि हमने लिख ली कंपैटिबिलिटी से. And now we can put these two back in this first one. ये दोनों जो हैं इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फर्स्ट वन में. तो what we'll get is minus delta steel thermal plus delta steel mechanical is equal to minus delta aluminium thermal plus delta aluminium mechanical. ठीक है जी. And now we can start putting the equations and their numbers. तो हमें पता है डेल्टा की इक्वेशन भी हमें पता है, अभी हमने लिखी है. क्या है जी, सो टेम्परेचर का जो डेल्टा है इसकी इक्वेशन अल्फा डेल्टा टी एल. फोर्स की हमें पता है एफ एल ओवर ए. सो यूजिंग दीज टू दोनों तरफ कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स हम पुट कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग नंबर्स. जो अल्फा है स्टील का, now it is 12 into 10 raised to power minus 6 per degree C, because this question is in degree C, so per degree C value हम यूज करेंगे. अच्छा जी, डेल्टा T 80 minus 20 into, जी बताएं. जब हमारे पास स्टील की दो रोड्स हैं तो हम उनको दोनों को डेल्टा टी नहीं एज्यूम करेंगे क्योंकि वो दोनों बैलेंस कर रही है एल्यूमिनियम को. दोनों में अपनी अपनी डिफॉर्मेशन आ रही होगी ना, दोनों का जो डेल्टा है वो अमाउंट तो सेम होगी. ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ पे दिस वन वुड बी रिड्यूसिंग बाय दी सेम अमाउंट, ये भी इसी लेवल पे आ जाएगी. जो ऊपर वाला आप समझेंगे, जो ऊपर वाला हमने रिजिड बार जिसे हम कह रहे हैं वो रखा हुआ है, वो इसी लेवल पे आ जाएगा. सो जो इसमें डेल्टा होगा स्टील बार में, चाहे एफ की वजह से हो चाहे टी की वजह से हो, ठीक है, वो सेम होगा जो कि इस लेफ्ट वन में होगा. तो दोनों में बाय सेम अमाउंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही होगी, दोनों की डिफॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही होगी. ऐड उस केस में होती है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सीरियली लगे होते हैं. यहाँ पे अब पैरेलल में है ना एक दूसरे के. आंसर हुआ क्वेश्चन आपका? यस सर. अच्छा जी. सो और जो लेंथ है दैट इज 0.25 इन मीटर्स प्लस फोर्स हमने ऑफ कोर्स कैलकुलेट करनी है इन स्टील इनटू लेंथ 0.25 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर, और जो मॉडुलस है स्टील का वो 200 गीगा पास्कल्स, 200 into 10 raised to power 9. दिस इज इक्वल टू, दूसरी साइड आ जाएगी माइनस. अब आप देखें जो मैं लिखने लगा हूँ नंबर, दैट इज फॉर एल्यूमिनियम 23 into 10 raised to power -6 per degree C. सो एल्यूमिनियम कितने टाइम्स मोर एक्सपैंड कर रहा है ड्यू टू टेम्परेचर देन स्टील? ट्वाइस. एटलीस्ट ट्वाइस कर रहा है, बिल्कुल ठीक है. और ये डिपेंड करता है डिफरेंट एल्यूमिनियम्स और डिफरेंट स्टील्स पे, बट दिस गिव्स अस अ बॉल पार्क फिगर कि एल्यूमिनियम अगर कहीं पे लगा हुआ होगा तो इट वुड बी एक्सपेंडिंग 2 टाइम्स देन अगर वहीं पे आप स्टील यूज करेंगे. सो
ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ज़हन में रखने वाली हैं कि जब भी हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जनरली एल्युमिनियम इज़ फेवर्ड, कि एल्युमिनियम का जो वेट है दैट इज़ मच लेसर देन द वेट ऑफ द स्टील। ठीक है, एल्युमिनियम की डेंसिटी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लेस है, बट एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर्स हैं तो विल बी गिविंग मच मोर मार्जिन टू एल्युमिनियम टू एक्सपैंड देन स्टील। ये देखें 73.1 इंटू 10⁻⁹ उसका मॉडुलस है, स्टील का अराउंड 200 था। सो यूजिंग दिस वी इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम स्टील की फोर्स को लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एल्युमिनियम फोर्स 1.216, फोर्स ऑफ एल्युमिनियम माइनस 165.9 into 10⁻3। So we have this equation, इसको क्या मैं 2 कह दूं, and we have another equation जो कि हमने मैकेनिकल उससे निकाली थी, इसको 1 कह देते हैं। Now we have 2 unknowns and 2 equations, so you can solve them pretty easily, and solving them we get force in steel as minus 16.4 kilonewton and force in aluminium as 123 kilonewtons, right? So this is how we have combined effect of mechanical and thermal loads, both type of loading in same problem। और प्रॉब्लम भी इनडिटर्मिनेंट है क्योंकि हमारे पास 3, यहाँ पे आप देखें 3 डिफरेंट पाथ्स हैं जिनसे डिफॉर्मेशन ट्रैवल करके फ्रॉम द टॉप रिजिड बार नीचे बेस तक जा सकती है। क्लियर है जी? So key to these questions is, I believe, writing a proper compatibility equation। अगर आप compatibility equation properly लिख लेते हैं तो you would be easily able to solve these questions। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं इसी की। थर्ड एग्जांपल में क्या हो रहा है, लेट मी ब्रिंग द टेक्स्ट। थर्ड एग्जांपल इज वेरी सिमिलर जो हमने यस्टरडे की थी, एक एग्जांपल आई थिंक स्लीव वाली, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। So this is the example statement, and figure जो है, this is the figure। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हमें बताया जा रहा है, नाउ वी हैव एल्यूमिनियम ट्यूब 2014 T6। ठीक है, ये जो बाहर वाली है ये एल्यूमिनियम ट्यूब है हमारे पास, दोनों एंड पे ये इसके फ्लैंज लगे हुए हैं। दैट हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 600 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है ए 600 मिलीमीटर स्क्वायर। इज यूज्ड एज ए स्लीव फॉर एन A36 स्टील बोल्ट। जो अंदर इसके चीज है वो जनाब एक स्टील बोल्ट है, ये वाला। ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम, एज्यूम तो नहीं कर रहे, इट्स ऑलमोस्ट शोन कि ये स्टील बोल्ट ये जा रहा है और ये स्टील बोल्ट जो है ये A36 का है। हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 400 मिलीमीटर स्क्वायर। व्हेन द टेम्परेचर इज 15 डिग्री C, इनिशियल टेम्परेचर जब ये सिस्टम बनाया गया होगा 15 डिग्री C था। The nut holds the assembly in a snug position such that the axial force in the bolt is negligible। 15 डिग्री C पे ये दोनों फाइन हैं, कोई स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं हो रही। Now if the stresses increase to, temperature is increased to 80 degree C, determine the force in bolt and sleeve। So bolt में और sleeve में दोनों में हमें force determine करनी है अगर there is a change of temperature, right? So
अगेन ये उसी तरह है कि जो स्लीव है बेसिकली इट वुड बी स्टॉपिंग द एक्सपेंशन ऑफ द बोल्ट इटसेल्फ, और उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही होंगी। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्वेश्चन इज प्रिटी सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग बिफोर। अगर इसको हम किसी भी जगह से क्रॉस सेक्शन लें, लेट सपोज यहाँ से हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, सो इट वुड बी कमिंग आउट समथिंग लाइक दिस। और फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करें तो विल सी कि जो ये हमारी स्लीव है, ठीक हो गया जी, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्लीव जो उसका फ्लैंज है, एंड देन वी हैव अवर बोल्ट जो कि उसके अंदर से गुजर रहा है, एंड ये इसका हेड आ गया, ठीक है जी। सो अब फोर्सेस क्या लग रही होंगी? क्यों जी, अब आप लोग बताएं क्या फोर्सेस कैसे लग रही होंगी इस पे? स्लीव जो है वो ज़हन में ये रखें कि जो स्लीव है दिस इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम एंड दिस बोल्ट इज मेड आउट ऑफ स्टील A36। अगर दोनों सेम मटेरियल के बने होते फिर क्या होता? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज बोथ वुड एक्सपैंड बाय सेम अमाउंट, यस सर। तो कोई प्रॉब्लम ना आता। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों का मटेरियल डिफरेंट है। जैसे किसी ने इनिशियली एग्जांपल में बताया था बाईमेटालिक स्ट्रिप, तो कौन सा ज़्यादा एक्सपैंड करेगा? एल्यूमिनियम। जो बोल्ट है वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा या स्लीव ज़्यादा एक्सपैंड करेगी? स्लीव एल्यूमिनियम की है ना, तो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी। स्लीव ज़्यादा एक्सपैंड करेगी और बोल्ट जो है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक हो गया। सो अब हम इस पे जो फोर्सेस हैं उनको अगर रिप्रेजेंट कर लें तो वी कैन से कि जी जो इस पे फोर्स लग रही है बोल्ट पे दैट इज FB, ठीक हो गया, एंड जो स्लीव की फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं FS के तौर पे। तो यहाँ से वी कैन सिंपली राइट फर्स्ट थिंग इक्विलिब्रियम, विच इज सेइंग के जो फोर्स इन स्लीव है वो फोर्स इन बोल्ट के बराबर है। और वैसे भी अगर हम देखें तो वी कैन मेक कॉमन सेंस से भी हम इस चीज़ पे पहुंच सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही हो रही है। ठीक, अच्छा जी। सेकेंडली हम क्या यहाँ से देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो यह है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज है दैट वुड कॉज स्लीव एंड बोल्ट दोनों को एक्सपेंशन कॉज करेगा। सो लेट्स इसी फिगर पे हम जो हमारे पास फिगर है इसी पे बना लेते हैं जी, कि जो हमारे पास ये आ रही है स्लीव और बोल्ट की वजह से एक डिफॉर्मेशन आ रही है जिसको हम कहते हैं बी थर्मल, और फिर हमारे पास जो फोर्स है उसकी वजह से आ रही है बोल्ट में, इसको कह लेते हैं एफ। सो जो टोटल इसकी डिफॉर्मेशन होगी लेट्स रिप्रेजेंट इट विद डेल्टा, और कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो जाएगी और लेट्स सपोज ये यहाँ तक इस लाइन तक पहुंच जाता है एग्जैजरेटेड फॉर्म में। ठीक है, दूसरे एंड पे क्या हो रहा है जी? अब स्लीव के साथ क्या हो रहा है? स्लीव हम कह रहे हैं कि ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। सो जो स्लीव इटसेल्फ है, लेट्स सपोज ये स्लीव है, तो स्लीव में थर्मल एक्सपेंशन हो रही है बेसिकली, सो स्लीव वुड बी एक्सपेंडिंग मोर। सो स्लीव लेट्स सपोज यहाँ कहीं आ जाती है एक्सपेंड करके, जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट इट इज एक्सपेंडिंग मोर ड्यू टू थर्मल। और फिर जो है उस पे जो फोर्स लग रही होगी बोल्ट की वजह से इट वुड टेक इट बैक टू दिस फाइनल पोजीशन। इस पोजीशन को अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज दी फाइनल पोजीशन,
तो ये जो है दिस वुड बी बेसिकली स्लीव पे मैकेनिकल फोर्स होगी, राइट. So this is what would be happening. Using this, we can write the compatibility equation. So compatibility equation में again for sake of ease यहाँ पे downward जो force है उसको positive लिखा गया है. So I write delta is equal to जो total displacement है पूरे system की, bolt में thermal plus bolt में जो mechanical force है is equal to जो स्लीव में थर्मल फोर्स है या स्ट्रेस है, सॉरी, माइनस स्लीव में मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है. सो दिस इज आवर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इन दिस केस. नाउ वी कैन सिंपली स्टार्ट पुटिंग नंबर्स और इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो नंबर्स यहाँ पे हमारे पास वही जैसे हम पहले पुट कर रहे थे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप पुटिंग दोज नंबर्स, ठीक है. एंड जब आप उनको पुट करके सॉल्व करते हैं तो यू विल एंड अप विद Fs इज इक्वल टू Fb. ये हमने ऊपर लिखा हुआ है मैकेनिकल उसमें इक्विलिब्रियम में, एंड वी गेट 20.3 kilonewtons as our force, right? So in all these questions you write equilibrium, we write compatibility, we put in the equations, numbers and solve for forces. अगर स्ट्रेस निकालने को कहा जाए तो then we can calculate stress. कोई इसमें क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, चलें. अगर एवरीवन इज फाइन विद दिस तो इसको यहाँ पे रोकते हैं और आज की असाइनमेंट जो कि यू वुड हैव टू सबमिट बाय संडे नाइट, ठीक है. छोटी सी असाइनमेंट होगी. असाइनमेंट क्या है जी कि आपके पास जो एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं, लेट मी क्लियर कैनवस, एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स किस चीज के? थर्मल स्ट्रेस के. जो 8th एडिशन को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो दे आर फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 4, 6, 8 टू प्रॉब्लम नंबर 4, 8, 6. ठीक हो गया. So this is the problem set which we have. Now everyone has to solve 2 questions out of these. Solve 2 questions. ठीक है. Questions कौन से चूज करने हैं? The last digit of your roll number, जिस क्वेश्चन के लास्ट डिजिट से मैच करता है वो क्वेश्चन आपने चूज करना है. फॉर एग्जांपल किसी का अगर नस्ट आईडी जो है वो 275623 है. आई एम जस्ट राइटिंग रैंडमली. सो योर लास्ट डिजिट इज 3, देन यू कैन सॉल्व 473 and 483. So match this last digit with the last digit of the numerical problem. और वो आपने सॉल्व करने हैं. And deadline for this is Sunday 11:59 PM. क्लियर है? कोई इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? क्यों जी? नहीं सर, नहीं सर. चलें, बहुत अच्छी बात है. कोशिश करें कि ये इस तरह देने का मकसद ये है कि सब अपने तौर पे कोशिश करें, खुद से सॉल्व करें, सॉल्यूशन मैनुअल को देखे बगैर सॉल्व करने की कोशिश करें. करेक्ट
या रॉन्ग के कोई पॉइंट्स नहीं है, सबमिशन के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सो ये मैं पहले क्लियर करने का मकसद ये है कि इस उसमें ना पढ़ें कि जी मैंने गलत कर दिया या वो कर दिया तो उसके मार्क्स कटेंगे, सिर्फ सबमिशन के मार्क्स होंगे। सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। आइडिया ये है कि आप लोग खुद से करें, ताकि देखने में और खुद से करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर कहीं पे स्टक हो रहे हैं कुछ हैं तो यू कैन देन टेल मी, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी कैन रिपीट दैट पार्ट या उसको दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे। बट सिंपल आइडिया इज कि खुद से ट्राई करें, सोल्यूशन मैनुअल से या किसी दोस्त से देखें मत, डिस्कस जरूर करें। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डिस्कसिंग, डिस्कस जरूर करें कि भाई मेरे क्वेश्चन में ये ऐसे आइडिया है, आपके क्वेश्चन में ये है, एम आई गोइंग राइट और नॉट, डिस्कस जरूर करें बट डोंट कॉपी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी का? सर किसी के असाइनमेंट अगर 4 मिनट लेट सबमिट हो तो उसके कितने मार्क्स कटते हैं? मैंने तो नहीं काटे किसी के, बाकी हर एक यार उसकी टीचर की अपनी मर्जी होती है। मैं बाकी आई एम नॉट penalizing anyone for 4 minutes or 5 minutes or 30 seconds or anything like that. Okay. ठीक है, तो ये दीज आर माइनर थिंग्स। देखें इस पे परेशान ना हो कि मैं 2 मिनट लेट कर दूंगा तो या घंटा लेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सबमिट कोशिश करें कि टाइम पे कर दें, नहीं होता डू लेट मी नो कि सर ये इशू हो गया था, आई कुडंट, सो आई ट्राई टू कंपनसेट यू एज मच एज आई कैन। लेकिन एक ये बात होती है कि हैबिचुअल नहीं उसमें होना चाहिए किसी को कि कोई ये हो कि कोई सारे कोर्स में ही लेट सबमिट कर रहा हो, तो फिर दैट मीन्स कि भाई समथिंग इज रॉन्ग। प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, देयर इज नो इशू, आई एम फ्लेक्सिबल इन दैट। कोई लेट हो गई है, कुछ हो गया है, किसी को कोई इशू है, डू लेट मी नो कि सर आई एम गोइंग टू बी लेट बाय 2 आवर्स 3 आवर्स, कल मॉर्निंग में कर दूंगा समथिंग। टीम्स का प्लेटफॉर्म इसीलिए यू कैन मैसेज मी देयर, आई रिस्पॉन्ड देयर, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट द आइडिया इज कि खुद से चीज़ करें। कोई इस प्रेशर में कि जी मैंने टाइम पे अगर नहीं सबमिट की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जो है कॉपी कर लूँ या कुछ कर लूँ, तो उसका आप कोई एट द एंड ऑफ द डे फायदा नहीं है, ना मेरे असाइनमेंट देने का और ना आपके असाइनमेंट करने का। ठीक हो गया? और कोई किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी? चलें जी, देन वी एंड द लेक्चर हियर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, रमजान में देखते हैं क्या टाइमिंग होते हैं, विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।